अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन 1814 सर Humphrey Davy and Michael Faraday collected samples of a flammable gas A from the ground near Florence in Italy. They analyzed A, which they found to be a hydrocarbon. Hydrocarbon means it has two elements, carbon and hydrogen. Further experiments were then carried out to determine the molecular formula of A. What is meant by the term molecular formula? मोलिकुलर फॉर्मूला किस तरह से हम देखो, आपको दो डेफिनेशंस पूछता है, मोलिकुलर मास एंड मोलिकुलर फॉर्मूला. यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ बोथ. मैं लिखवा देता हूँ, ये डेफिनेशन याद कर लो, अक्सर पूछता है ये डेफिनेशंस. How you define molecular mass or relative atomic mass? It is the average mass. देखो, तीन डेफिनेशंस हैं जो आपसे वो पूछ सकता है. Number one is atomic mass. It is represented by the symbol AR. ठीक है. It is the average mass of all the isotopes of an element compared with 1/12 part of the carbon 12 isotope. अच्छा, मोलिकुलर मास को हम रिलेटिव फॉर्मूला मास भी कहते हैं. रिलेटिव फॉर्मूला मास एंड मोलिकुलर मास आर द सेम थिंग. बस जब आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वी से रिलेटिव फॉर्मूला मास. कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए हम मोलिकुलर मास कहते हैं. मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए, कोवलेंट के लिए हम मोलिकुलर मास कहते हैं, और फॉर आयनिक कंपाउंड वी कॉल इट रिलेटिव फॉर्मूला मास. तो इसका क्या होता है? इट इज द sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule or compound. And how do you define molecular formula? It tells us the actual number of atoms of all the elements present in a molecule. ठीक है, आगे बढ़े. ओके, molecular formula तो हमने define कर लिया. Now he's saying Davy and Faraday reduced the formula of A by exploding it with an excess of oxygen. Exploding मतलब combustion करवाना, reaction करवाया उसको, combustion reaction with an excess of oxygen and analyzing the products of combustion. Complete and balance the following equation for the complete combustion of hydrocarbon with the formula CXHY. So last class में we discussed that if you burn any hydrocarbon with excess of oxygen, the products are always carbon dioxide and water.
So in order to balance this equation, number of moles of atoms of carbon becomes moles of carbon dioxide जो कि x है, और number of moles of hydrogen atom becomes half of moles of water y/2. और फिर हम राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन टोटल काउंट करके उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो वो वैल्यू क्या बन जाती है, x + y/4. ठीक है जी, इन्होंने ऑलरेडी बैलेंस हमें लिख के दिए हुए है लेफ्ट हैंड साइड, हमें लिखने की जरूरत नहीं है. आगे कह रहा है when 10 centimeter cube of A was mixed at room temperature with 50 centimeter cube of oxygen and an excess. Oxygen excess में बता दिया उसने. And exploded 40 centimeter cube of gas remained after cooling the apparatus to room temperature. Now, when you have cooled the apparatus to room temperature, it means that water will be in the liquid state. Room temperature पे water liquid होता है ना, तो जो गैसेस हमारे पास होंगी 40 सेंटीमीटर क्यूब में, उसमें स्टीम नहीं होगा, वाटर वेपर नहीं होगा, सिर्फ 2 गैसेस हमारे पास होंगी. देखो, ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, इट मींस ऑल द हाइड्रोकार्बन गैस इज रिएक्टेड, वो खत्म हो गया. ऑक्सीजन जो होगा उसका कुछ रिमेनिंग अमाउंट होगा. देखो, नाउ द फाइनल मिक्सचर वुड हैव लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन, और इसको वी कैन आल्सो से रिमेनिंग ऑक्सीजन, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन. तो ये दोनों मिला के कितना इन वॉल्यूम बना हुआ है, 40 सेंटीमीटर क्यूब. राइट, नाउ ही इज सेइंग व्हेन दिस 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस was potassium hydroxide. Potassium hydroxide is an alkali and it will, so carbon dioxide is an acidic gas because non-metal oxides are acidic oxides. So when you have passed this gas through aqueous potassium hydroxide, so carbon dioxide gas will react with potassium hydroxide. Centimeter cube of this gas was shaken with excess potassium hydroxide. 30 centimeter cube of gas still remained. जब हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड will get absorbed into potassium hydroxide because it will react with potassium hydroxide. The remaining gas left is now 30 centimeter cube. It means 10 centimeter cube of gas which was carbon dioxide has been absorbed by potassium hydroxide. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट पता चल गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब है. और ये जो 30 सेंटीमीटर क्यूब गैस अभी भी वापस मिल गई है आफ्टर shaking it with potassium hydroxide, it means it is oxygen, जो कि remaining oxygen after combustion बचा हुआ है. ये बात क्लियर है सबको? He is asking what is the identity of the 30 centimeter cube of gas that remain at the end of the experiment. मतलब after shaking it with potassium hydroxide जो 30 centimeter cube gas बची है वो कौन सी गैस है? This is oxygen gas. The combustion of A produce a gas that reacted with potassium hydroxide. तो potassium hydroxide के साथ कौन सी गैस रिएक्ट हुई है? Identity of this gas is carbon dioxide gas. And you can also tell me the amount of carbon dioxide gas जो वही गैस carbon dioxide produced हुई है combustion reaction में. So what volume of the gas you have identified in 2? ना उसका वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है आफ्टर द कंबशन was 10 सेंटीमीटर क्यूब. समझ आई यहाँ तक बात सबको? गाइस, what volume of oxygen was used up in the experiment of used up in the combustion of A? बताओगे इसका आंसर? आवाज आ रही है सबको? I am asking you कि they are saying the 40 centimeter cube of gas remained then reacted with potassium hydroxide. तो potassium hydroxide के साथ react होने के बाद 30 centimeter cube गैस वापस बाहर आ गई potassium hydroxide में से, मतलब वो ऑक्सीजन थी 30 centimeter cube. तो initially how much oxygen we have taken, जो एक्सेस में उसने बताई थी, it was 50 centimeter cube oxygen. So out of 50 centimeter cube of oxygen, 30 centimeter cube of oxygen is still remaining. It means how much oxygen has been reacted with hydrocarbon?
20 सेंटीमीटर क्यूब। हाइड्रोकार्बन गैस हमने कितनी ली थी? 10 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब गैस के साथ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन रिएक्ट हो रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी बनी थी? 10 सेंटीमीटर क्यूब बनी है, जो कि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के पता लगाई है। With 10 centimeter cube hydrocarbon gas, 20 centimeter cube of oxygen has been reacted to produce 30 centimeter cube of carbon dioxide gas. Okay. So what volume of oxygen was used up in the combustion of it? That was 20 centimeter cube. यहाँ तक क्लियर है ना? देखो दिस इज ऑफ फॉर 4 मार्क्स। इतना सा काम सिर्फ 4 मार्क्स का है। यू जस्ट हैव टू रियलाइज कि कौन सी गैस किसके साथ रिएक्ट हो रही है और कौन सी गैस कितनी बचेगी। Now it's saying use your equation in B and your result from C3 and C4 to calculate the molecular formula of A. Now we know the equation, balanced chemical equation तो हमें पता है, which is CXHY, but in the form of variables. और ऑक्सीजन का उसने दिखा हुआ है x plus y/4 moles of oxygen reacting to produce x moles of carbon dioxide and y/2 moles of water. अब ये किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए ये जो जनरलाइज्ड फॉर्म हमने बैलेंसिंग की लिखी है, इट विल स्टे सेम। एज पर दिस एक्सपेरिमेंट वी गॉट टू नो दैट 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस, जो अभी तक हमें नहीं पता कौन सी गैस है, इज रिएक्टिंग विद 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वाटर की हमें नहीं पता कि कितना वॉल्यूम है, बिकॉज वाटर लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है नहीं। तो ये जो इनके वॉल्यूम की स्टोइचियोमेट्री आई है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्टिंग विद 20 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर इन वॉल्यूम का हम सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे तो वो मोलर रेशियो के इक्वल होगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ एनी गैस एट सेम कंडीशंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गैस, अगर किसी 2 या 2 से ज्यादा गैसेस का हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है तो उनके वॉल्यूम भी इक्वल होते हैं। मतलब जो उनके मोलर रेशियो होते हैं वो इनके वॉल्यूम रेशियो भी होते हैं। ये बात मैं वॉल्यूम्स के लिए तो कह सकता हूँ, लेकिन मासेस के लिए नहीं कह सकता। Let's say if I have 1 mole of ethane gas or 1 mole of chlorine gas or 1 mole of ammonia gas, अगर उन सबके मोल्स 1 है तो उनके वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी सेम कंडीशंस पे इक्वल होंगे, बट उनके मासेस डिफरेंट होंगे, उनके मासेस उनके मोलिकुलर मासेस के बराबर होंगे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास इसका मैं सिंपलेस्ट रेशियो ले लूँ इन गैसेस के वॉल्यूम्स का, तो वही इनका मोलर रेशियो भी बनेगा। अगर मैं इन सबको 10 से डिवाइड कर दूं तो देयर मोलर रेशियो वुड बी इक्वल टू 1:2:1। It means 1 mole of this hydrocarbon gas is basically reacting with 2 mole of oxygen. अब ऑक्सीजन के मोल्स की जगह पूरा x plus y/4 लिखा हुआ है, to produce 1 mole of this carbon dioxide gas. तो x की वैल्यू तो मुझे यहाँ से पता लग गई ना कि x की जगह पे 1 आएगा, और x plus y/4 की जगह is equals to it should be 2। x की वैल्यू हमें पता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड मोल्स, तो x की जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y would be equals to 4। now x is 1 and y is 4, so the formula for this hydrocarbon gas would be CH4 and this is methane। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? ये आगे यही पूछा हुआ है, x की वैल्यू निकालो फिर y की वैल्यू निकालो एंड टेल अस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ A। पक्की बात है? क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाए। नवाल बच्चे क्या रिपीट करने का कह रहे हो? ओके, फर्स्ट पार्ट ये बैलेंसिंग पूछ रहे हो? बैलेंस कैसे हुआ है? देखो हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन गैस है ना, जैसे अगर जैसे लेट्स से C2H6 है। ओ पार्ट सी कह रहे हो? देखो इसमें उसने कहा था कि
ऑल टुगेदर वी हैव 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस, जिसको हमने रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन गैस के साथ। जब हमने इक्वेशन बनाई है तो कंबशन इक्वेशन में वी नो द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके मोल जो होंगे वो हम इक्वेशन के हिसाब से, अगर कार्बन x लिखा हुआ है तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड x हो जाएगा, हाइड्रोजन y लिखा हुआ है तो मोल्स ऑफ वाटर y/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ A है, इसमें इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस जो इनिशियली ली है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब ली है। उसके बाद वो कह रहा है कि रिएक्शन के बाद अब ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो इट मीन्स कि जो हाइड्रोकार्बन गैस है वो सारी की सारी रिएक्ट होके खत्म हो जाएगी, और ऑक्सीजन गैस बची जो कुछ एक्सेस में है तो कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा उसमें से, रिमेनिंग ऑक्सीजन होगी कुछ, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी। अब हमें नहीं पता कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुई है और कितनी ऑक्सीजन बची रह गई है, लेकिन जो टोटल रिमेनिंग गैस है आफ्टर कूलिंग द apparatus टू रूम टेम्परेचर। अच्छा, कूलिंग का वजह से मुझे ये पता लगा कि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो वाटर स्टीम फॉर्म में नहीं है, वाटर के वेपर्स नहीं है। तो अब जितनी भी गैसेस हैं हमारे पास, जो 40 सेंटीमीटर क्यूब वो गैस कह रहा था रिमेनिंग है, उसके अंदर दो तरह की गैसेस होंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि प्रोड्यूस्ड हुई है रिएक्शन में, और एक ऑक्सीजन गैस जो कि रिमेनिंग गैस है, जो कंबशन के बाद बची रह गई है। फिर वो ये कह रहा है कि हमने इस 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस दैट रिमेन एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इस 40 सेंटीमीटर क्यूब गैस को रिएक्ट करवाया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कली, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में से इस 40 सेंटीमीटर क्यूब गैस को पास करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो अंदर ही रुक जाएगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाएगी, और बाकी की जो ऑक्सीजन है वो बाहर आ जाएगी। तो जो बाकी की गैस बची है वो कितनी बची है, 30 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब अंदर रुकी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी थी, 10 सेंटीमीटर क्यूब, और जो बाकी बाहर आई वो ऑक्सीजन गैस थी 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो जो बाहर आई है वो ऑक्सीजन है। तो ही वाज आस्किंग जो 30 सेंटीमीटर क्यूब गैस दैट रिमेन एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो कि रिएक्ट नहीं हुई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो ऑक्सीजन गैस है ना, और जो रिएक्ट हो गई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर उसने क्वांटिटी पूछी है कि जो आपकी गैस आइडेंटिफाई हमने की है 2 में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसकी वॉल्यूम कितना था। तो 40 में से 30 बाहर आ गया जो कि ऑक्सीजन था, 10 अंदर रह गया, जो अंदर रह गया वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, 10 सेंटीमीटर क्यूब। आ गई समझ बात नवाल? ओके, अच्छा, क्वेश्चन 3 हमने किया था पहले। क्वेश्चन 13 का हाँ हम कर लेते हैं, पहले बता दो क्वेश्चन 3 हमने किया हुआ है। नहीं तो हम क्वेश्चन 3 आसान सा है, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना, वैसे क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेंगे, क्वेश्चन 3 वाले क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेंगे। चलो क्वेश्चन 3 कर लेते हैं। ही इज सेइंग व्हेन 0.42 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन A is slowly passed over a large quantity of heated copper to oxide, A is completely oxidized। अब गैसियस हाइड्रोकार्बन में हमें पता है कि कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, लेकिन कितने कार्बन कितना हाइड्रोजन है वो नहीं पता। अच्छा, उसको उसने कॉपर टू ऑक्साइड से ऑक्सीडाइज करवाया है, क्या रिएक्शन है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में आगे वो जो कह रहा है उसकी डिटेल से हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कह रहा है द प्रोडक्ट्स आर कलेक्टेड एंड इट इज फाउंड दैट 1.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.54 ग्राम वाटर आर फॉर्म्ड, कॉपर इज द ओनली अदर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। देखो, अगर मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन गैस है, उसको अगर मैं फर्दर रिएक्ट करवा रहा हूँ तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और वाटर बन रहा है, तो जितना भी कार्बन है इस हाइड्रोकार्बन में वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाएगा, और जितना भी हाइड्रोजन है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, वाटर में आ जाएगा। ठीक है, और साथ में वो कह रहा है कि एक और प्रोडक्ट बना है डेट इज कॉपर, तो कॉपर टू ऑक्साइड था उस वजह से आ रहा है।
लेकिन जितना भी कार्बन आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, वो सारा का सारा जो भी हाइड्रोकार्बन ए है उसमें से निकल के आ रहा है, और जितना भी हाइड्रोजन आ रहा है वाटर में, वो सारा का सारा जो हाइड्रोकार्बन ए है उसमें से निकल के हाइड्रोजन आ रहा है। Now he's saying calculate the mass of carbon present in 1.32 ग्राम of carbon dioxide। देखो इसने जो हमें मास दिया हुआ है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ है, कार्बन का तो नहीं दिया हुआ। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला में कार्बन कितना है वो मुझे पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, डेट इज 44 ग्राम। और इस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हाउ मच कार्बन इज देयर? कार्बन का 1 मोल है ना, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एज अ मास ऑफ 12 ग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन कितना है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यू वुड से 2 into 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ये मिलके ही तो 44 ग्राम बना रहा है। इट मीन्स 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हैज 12 ग्राम कार्बन इन इट। ये बात समझ आई? जब भी मैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगा, इट मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ मास इक्वल्स टू 44 ग्राम, and 44 gram carbon dioxide has 12 gram of carbon in it. So I can say 44 gram carbon dioxide always have 12 gram carbon in it. Now, right now we have 1.32 gram carbon dioxide produced in this reaction. तो अगर मेरे पास 1.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 1.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन एलिमेंट होगा? दैट वुड बी एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 44 एंड 12 इंटू 1.32, x की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 1.32 डिवाइड बाय 44। समझ आई ये वाली बात? ये बन रहा है 0.36 ग्राम कार्बन। ये जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है वो पता लग गया। कितने कार्बन डाइऑक्साइड में? 1.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, और यही सारा का सारा कार्बन हाइड्रोकार्बन से आया है। ये बात क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है यूज दिस वैल्यू टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ कार्बन एट प्रेजेंट इन 0.42 ग्राम ऑफ ए। देखो ए बेसिकली हमारे पास जो है ना वो हाइड्रोकार्बन है, जिसमें अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। उसको जब हमने ऑक्सीडाइज किया है तो उसमें से दो चीजें बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और वाटर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास बना है वो बना है 1.32 ग्राम, और वाटर का जो मास बना है वो उसने दिया हुआ है 0.54 ग्राम। तो 1.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना होगा वो मैंने पार्ट A1 में निकाला, जो कि आ रहा है 0.36 ग्राम कार्बन। इसी तरह वो वाटर के 0.54 ग्राम में हाइड्रोजन कितना होगा वो भी निकलवाएगा आगे वाले पार्ट। बट नाउ फॉर नाउ यू नो द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 1.32 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। और यही सारा का सारा कार्बन कहाँ से आया? हाइड्रोकार्बन ए से आया है ना। अगर ये जो 0.36 ग्राम कार्बन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंचा है, तो ये कहाँ से पहुंचा है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ए। हाइड्रोकार्बन ए में ही तो कार्बन था ना, वही तो कार्बन डाइऑक्साइड में आगे कन्वर्ट हुआ है। तो जो मास ऑफ कार्बन 0.36 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड में, वो बेसिकली आया सारा का सारा कहाँ से? हाइड्रोकार्बन ए से। तो अगर वो मुझसे पूछता है कि हाइड्रोकार्बन ए में जो ए है उसमें मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं, तो भाई ये जो मास आया है 0.36 ग्राम कार्बन का, वो ए में से ही आया है। तो इन्हीं मास को मोल्स में कन्वर्ट कर दो ना, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एटॉमिक मास। अब कार्बन का मास ए में कितना है वो आपको पता है, 0.36 ग्राम है, और एटॉमिक मास कार्बन का इज 12। तो कितने मोल्स आ जाएंगे? 0.03 मोल ऑफ कार्बन। तो ये जितने भी मोल्स हैं कार्बन के, कार्बन डाइऑक्साइड में भी उतने ही मोल्स हैं, और हाइड्रोकार्बन ए जो है उसमें भी उतने ही मोल्स हैं, क्योंकि कार्बन के इतने मोल सारे के सारे कहाँ से आए? हाइड्रोकार्बन ए से आए। क्लियर हुई? कुछ बात समझ आई? देखो अगर पूछना है तो पूछ लो, नंबर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, अब आगे वो हाइड्रोजन के लिए काम करवाएगा जो उसने कार्बन के लिए करवाया। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 0.54 ग्राम ऑफ वाटर।
सो वाटर का जो 0.54 ग्राम है उसमें हाइड्रोजन कितना होगा? वी नो बाय द फॉर्मूला ऑफ वाटर दैट 1 मोल ऑफ वाटर हैज अ मास इक्वल्स टू 18 ग्राम, मतलब उसका जो एमआर होता है। अब उसमें हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन एटॉमिक मास इज 1, देयर आर 2 हाइड्रोजन इन द फॉर्मूला, एंड ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16, देयर इज 1 ऑक्सीजन इन द फॉर्मूला, तो इट बिकम्स 18 ग्राम। इस पूरे 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम मास हाइड्रोजन की वजह से और बाकी का 16 ग्राम मास ऑक्सीजन की वजह से। राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वाटर। सो 18 ग्राम ऑफ वाटर ऑलवेज हैव, चाहे वो कहीं भी वाटर बने, किसी भी फॉर्मूला में बने, किसी भी रिएक्शन में बने, always 18 gram of water will contain 2 gram of hydrogen element. Right now we have 0.54 gram of water produced in this reaction. So 0.54 gram of water will have how much mass of hydrogen? वो आप रेशो से निकाल लोगे, कितना आएगा ये? दिस वुड बी x into 18 and 0.54 into 2. So this would be equals to 0.06 gram. अब ये सारा का सारा हाइड्रोजन जो है वो वाटर में आया कहाँ से है? हाइड्रोकार्बन से ही आया ना। हाइड्रोकार्बन को जब आपने ऑक्सीडाइज किया तो वो वाटर बना, तो वाटर में जितना भी हाइड्रोजन पहुंचा है वो कहाँ से पहुंचा है? हाइड्रोकार्बन से पहुंचा है। अब अगर वो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन पूछ लेता है तो वो कौन से मास से मोल्स निकालोगे? इसी मास से ना, 0.06 ग्राम जो है। सेम बात है कि CxHy जो था उस जब हमने ऑक्सीडाइज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, वाटर भी बना। तो वाटर में जितना भी मास पहुंचा है हाइड्रोजन का वो सारा का सारा हाइड्रोकार्बन से पहुंचा है। तो अभी वाटर का में जो हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.06 ग्राम। तो ये सारा का सारा मास कहाँ से आया है? हाइड्रोकार्बन से आया। तो हाइड्रोकार्बन ए में हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं? तो मोल्स निकालने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। mass of hydrogen is 0.06 gram, atomic mass of hydrogen is of course 1, तो मोल्स कितने बन जाएंगे? 0.06 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोकार्बन ए में है। हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन ए। इसी तरह हाइड्रोकार्बन ए में कार्बन के मोल्स हमने पहले वाले ऊपर वाले पार्ट में निकाले, पार्ट 1 में, और फिर पार्ट 2 में हमने इसके हाइड्रोजन के मोल्स निकाले, किसमें? हाइड्रोकार्बन ए में। ये H2 नहीं है, दिस इज ओनली हाइड्रोजन एलिमेंट। समझ आई बात? So he's saying it is thought that A is an alkene rather than an alkane. एल्कीन और एल्केन का डिफरेंस ओ लेवल में आपने पढ़ा होगा। एल्कीन आर दी हाइड्रोकार्बन विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्केन का होता है इट इज CnH2n+2, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले। कह रहे यूज योर आंसर इन 1 and 2 टू डिड्यूस वेदर दिस इज करेक्ट, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो अब कार्बन के जो मोल्स ऑफ एटम, कार्बन के जो मोल्स आए कार्बन एटम्स के, वो आए 0.03 मोल, उपज हमने निकाले हाइड्रोकार्बन ए में। और हाइड्रोजन के जो मोल्स आए वो आए 0.06 मोल। अगर मैं इनका रेशो ले लूं 0.03 मोल ऑफ कार्बन, सिंपलेस्ट रेशो ले लूं, तो इनको मैं डिवाइड कर दूंगा 0.03 डिवाइडेड बाय 0.03 छोटे नंबर से, तो कार्बन बन जाएगा 1 और हाइड्रोजन बन जाएगा 0.06 डिवाइड बाय 0.03 इज 2। सो इट्स बेसिकली इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला वुड बी CH2। तो एल्केन्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 होता है या एल्कीन्स का होता है? देखो अल्केन और एल्कीन की अगर आप एग्जांपल्स देखो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोबारा पढ़ेंगे ऑब्वियसली एएस ऑर्गेनिक में, लेकिन ओ लेवल में आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी है तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं एल्केन और एल्कीन को देखूं तो एल्केन जैसे फर्स्ट एल्केन इज मीथेन व्हिच इज CH4, सेकंड एल्केन इज इथेन व्हिच इज C2H6, एंड थर्ड एल्केन इज प्रोपेन व्हिच इज C3H8। सिमिलरली फर्स्ट एल्कीन इज इथीन C2H4, फिर प्रोपीन C3H6, फिर ब्यूटीन C4H8। तो अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला निकालूं एल्कीन्स का तो वो हमेशा देखो CH2 बनेगा।
क्योंकि 2 से डिवाइड करा, प्रोपीन में 3 से डिवाइड करा, तो डेट वुड बी अगेन CH2, और ब्यूटीन में 4 से डिवाइड करोगे, कॉमन नंबर है तो CH2 बनेगा। लेकिन एल्केन्स का अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे तो वो सबका अलग अलग आएगा। मीथेन का तो CH4 ही रहेगा, लेकिन इथेन का बन जाएगा CH3, और प्रोपेन का C3H8 ही रहेगा, क्योंकि 3 और 8 में कॉमन नंबर 1 ही है। तो इस रेशियो को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ये एल्कीन है। तो ये कह रहा था कि इट इज थॉट दैट A इज एन एल्कीन रादर देन एन एल्केन। तो यस, ही इज राइट। व्हाई? बिकॉज molar ratio between carbon and hydrogen is 1:2, which is the empirical formula of alkene, which is empirical formula for alkenes. क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़े। पार्ट बी में कह रहा है एनालिसिस ऑफ अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बी गिव द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय मास, कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यू जस्ट हैव टू वर्क आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। गाइस रिमेंबर हाउ टू फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। कार्बन की परसेंटेज दी हुई है 64.86, हाइड्रोजन इज 13.5, ऑक्सीजन इज 21.64। फर्स्ट स्टेप क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए? डिवाइड ऑल दीज परसेंटेजेस बाय देयर एटॉमिक मासेस, और एटॉमिक मासेस से डिवाइड करने के बाद यू डिवाइड ऑल दीज नंबर विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑल। मतलब ये आ रहा है 5.41 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 13.50 एंड 1.35। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑल दीज थ्री इज 1.35। तो सबको 1.35 से जब डिवाइड कर देंगे तो कार्बन वुड बी इक्वल टू 4, hydrogen 10 and oxygen is around 1. Empirical formula would be C4H10O1. नहीं है ना? थोड़ा जल्दी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आई होप समझ आ गई ये बात। Yes. अच्छा, बी का पार्ट 2 ये अभी हम नहीं कर सकते, ये पूरा ऑर्गेनिक का पार्ट है। ये आप इस पे ना पेंडिंग लिख के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख देना, क्योंकि ये ओ लेवल वाली ऑर्गेनिक नहीं है, नई वाली ऑर्गेनिक। अच्छा जी, एजाज आप कोई ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया था ना? हाँ, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में किया था मोल्स। एजाज आप कोई और क्वेश्चन भी पूछ रहे थे? क्वेश्चन 13। अच्छा, क्वेश्चन 13 में तो सबसे पहले तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, राइट? तो निकाल लेते हैं, पूरा क्वेश्चन ही कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। हसीब बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। जरा साथ साथ निकाल लोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका। ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय मास। कार्बन की परसेंटेज दी हुई है इज 48.7, हाइड्रोजन की परसेंटेज दी हुई है 8.1, ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है 43.2। फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड ऑल दीज परसेंटेजेस बाय देयर एटॉमिक मासेस। तो कार्बन बन जाएगा, दिस इज अराउंड 4.06, hydrogen 8.1 and oxygen is 2.7। अच्छा, फिर स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर इन सब में 2.7 है, तो ऑक्सीजन आ जाएगा 1, हाइड्रोजन आएगा 8.1 डिवाइडेड बाय 2.7 इज इट इज एग्जैक्टली 3,
एंड कार्बन आएगा 4.06 डिवाइड 4.06 एंड 2.7, ये आएगा 1.5। अब देखो जब भी यहाँ पे इस तरह का नंबर आता है ना, 1.5 आ गया या 2.5 आ गया या 2.499 आ गया, तो वी डू नॉट राउंड इट ऑफ लाइक द मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स का जो रूल है ना राउंडिंग ऑफ का, इफ एनी नंबर इज 1.5 और ग्रेटर देन दैट, तो वी राउंड इट ऑफ टू 2। तो हम वैसे नहीं करते। इन ऑर्डर टू मेक दिस होल नंबर वी यूज टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ये होल नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा। तो कार्बन को जब हम 1.5 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 इज 3। कार्बन को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हाइड्रोजन को भी करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को भी करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन विल बिकम 6 एंड ऑक्सीजन विल बिकम 2। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वुड बी C3H6O2। ये बात याद है सबको, डायरेक्टली फ्रॉम ओ लेवल, कि अगर फाइनल रेशियोज हमारे पास में उसमें से कोई नंबर ऐसा आता है कि जो कि 1.5 या 2.5 मतलब या 0.5 के करीब है। देखो अगर 1.33 भी आता है ना तो उसको भी हम ना राउंड ऑफ नहीं करते, 1 नहीं लिखेंगे राउंड ऑफ करके, उसको भी हम ना 1.33 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि होल नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा है। ऑफ कोर्स 1.33 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो होल नंबर नहीं बनता, इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये 3.9 बनता है, उसको हम 4 लिखते हैं। याद आ गई ये बात कि इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन अक्सर आता है और आसान क्वेश्चन है, मार्क्स स्कोरिंग है, मोल्स में सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला ही होता है। सर अगर जो है होल नंबर में आंसर नहीं आया तो? होल नंबर में अगर आंसर नहीं आया तो यू हैव टू चेक कि कितना डेसिमल प्लेस आ रहा है। अगर लेट्स से इफ इट इज 1.9 यू कैन राउंड इट ऑफ टू 2, बट इफ इट इज 1.1 you can round it off to 1, right? But if it is more than 1.2, let's say अगर 1.33 इस तरह से आ रहा है या 1.8 तक वैल्यूज आ रही हैं, 1.8 को भी हम राउंड ऑफ कर देते हैं 2 पे, लेकिन अगर 1.3 से 1.7 के बीच में वैल्यूज आ रही है ना तो हम उसको राउंड ऑफ नहीं करते, वी मल्टीप्लाई बाय विद 2 और 3 और एनी अदर नंबर। पहले 2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करने का तो फायदा नहीं है ना, तो वो तो वही रहेगा। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर वो 2 से मल्टीप्लाई करने पे होल नंबर बन जाता है तो वो वाला होल नंबर लिख देंगे, लेकिन अगर नहीं बनता तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यूजुअली 2 से मल्टीप्लाई करके बन जाता है होल नंबर, या पे वर्स्ट कम वर्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करके बन जाता है। आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि 4 से मल्टीप्लाई करके हमें होल नंबर बनाना पड़े। लेकिन अगर नंबर ऐसा आ रहा है ना 1.9, तो 1.9 को 2 लिख देना, फिर उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी नियर टू 2। लेकिन अगर 1.3 से लेके 1.7 तक कोई डेसिमल में वैल्यू आ रही है तो फिर उसको आप जो है होल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे किसी फिक्स नंबर से। क्लियर? अच्छा, आगे पार्ट में कह रहा है अच्छा ये के लिए कह रहा है, एंड इक्वेशन भी आपको पूरी बना के दे रहा है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाली इक्वेशन हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे अगर हम मास ओवर एमआर रख दें तो ये इक्वेशन यही बन जाएगी। उसने ये एम मास को एम लिखा हुआ है, तो टू कैलकुलेट एम आर ऑफ
A